ہر فن مولا بنیے، ہے نا. آپ سب چیز میں نالج لیجئے، اسپیشلی اسلام، کیونکہ آپ سب سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کے لیے زندگی میں اسلام ہے. دور جو ہے بہت فتنے کا دور ہے، دجالی دور ہے، تو اس زمانے میں بہت ضرورت ہے کہ والدین بھی اپنی اولاد کی اسلامی تربیت پر توجہ دیں. مطلب یہ مقصد نہیں کہ ہمیں انعام ملا، مقصد یہ تھا کہ ہم نے جو پڑھا اس پہ ہم کتنا عمل کرنے والے ہیں. انشاءاللہ اس سے حوصلہ بھی ملا ہے، اور آئندہ انشاءاللہ ہماری کوشش یہ رہے گی کہ ہم اس طرح کے اور پروگرام انشاءاللہ چلائیں اور کامیابی کے ساتھ چلانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہماری یہ کوشش یہ ہے کہ ان بچوں کی دینی تعلیم کا یہاں مسجد میں انتظام ہو، اور بچے اپنا عقیدہ، اپنا دین، اپنی شریعت، اپنی تہذیب، اپنی تاریخ، یہ سب چیزیں سمجھیں. ایک مسلم محلے میں رہ رہے ہیں، مسلم سماج میں رہ رہے ہیں. یہاں کے بچوں کو اگر دین کی بنیادی تعلیم نہ معلوم ہو، اس کا علم نہ ہو، تو پھر یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بچے کیا بڑے بھی دینیات اور دینی کتابوں سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. دوستو، ان دنوں آئی پی ایل چل رہا ہے. آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں سے پوچھئے کہ آئی پی ایل میں کون کون سی ٹیم کھیل رہی ہے، وہ سب کا نام بتا دیں گے. آپ ان سے پوچھئے ان ٹیموں کا کپتان کون ہے، وہ بھی بتا دیں گے. آپ ان سے یہ پوچھئے پریویس جب بھی ہوا آئی پی ایل کون کب جیتا، وہ سب بتا دیں گے. آپ ان سے پوچھئے کون سی فلمیں کب ریلیز ہو رہی ہے، کون سی فلم نے باکس آفس پہ کتنی کمائی کی ہے، آپ کے بچوں کو یقین مانیے سب پتا ہوگا. پھر ان سے اچانک آپ کوئی اسلامی سوال کر لیجئے، ہو سکتا ہے آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کے 99% بچے فیل ہو جائیں. یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں دنیا بھر کی چیزیں پتا ہو، عام معلومات ہمیں ہونی چاہیے، بہت ضروری ہے. جنرل نالج کسی بھی اسٹوڈنٹس کے لیے جنرل نالج مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب کچھ جانیں، لیکن جو آپ کا مذہب ہے اسلام، اس کے بارے میں آپ کی معلومات نہیں ہو یا بہت کم ہو. اسی بات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے شاہین مسجد میں جماعت اسلامی جو شاہین باغ کی یونٹ ہے، اس نے اسلامی کوئز کمپٹیشن کا انعقاد کیا تھا، جس میں بہت سارے بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا. ان بچوں کو جو پہلی 3 پوزیشن آئی ان کو کیش پرائز بھی دیا گیا. جو پہلی پوزیشن پر آئے انہیں 7,000 ملا، جو دوسرے نمبر پہ آئے انہیں 6,000 ملا، جو تیسرے پر آئے انہیں 5,000 ملا. اس کے علاوہ جتنے بچوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا سب کو کنسولیشن پرائز بھی ملے، سرٹیفکیٹس بھی ملے. کریمی صاحب، یہ کتنا ضروری ہے اس طرح کی چیزیں ہوتے رہنی چاہیے؟ اصل میں موجودہ حالات میں تو بہت ضروری ہے، اس لیے کہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ ہمارے بچے کیا بڑے بھی دینیات اور دینی کتابوں سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. ان کی معلومات بہت صفر ہو گئی ہیں. بسا اوقات نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کیا پڑھتے ہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے. تو جماعت اسلامی شاہین باغ کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ نونہال بچوں کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے کچھ کوئز کمپٹیشنز وغیرہ کا اہتمام کیا جائے، تاکہ اسی بہانے وہ کتابوں کا مطالعہ کریں اور اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور ان کو انعامات دیے جائیں. الحمدللہ یہ ہمارا جو کوئز کمپٹیشن ہوا ہے یہ بنیادی طور پر رمضان میں ہونا تھا، لیکن رمضان کی مصروفیات اور امتحانات وغیرہ کی وجہ سے اس کو پوسٹپون کر کے اب کیا گیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کے گارجینز نے، طلبہ نے بہت پسند کیا، اور آپ نے دیکھا کہ کافی بڑی تعداد میں طلبہ اور طالبات تھے. اور انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو آئندہ بھی جاری رکھیں گے. بہت بیسک معلومات جو اسلام کی ہیں، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، روزہ کیا ہے، رمضان کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے وغیرہ کو ہم یہاں سے شروعات کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اسٹیج بائی اسٹیج ہم اس کو آگے تک لے جائیں گے. یہ تو کوشش ہماری طرف سے ہو رہی ہے، اور یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم ایک مسلم محلے میں رہ رہے ہیں، مسلم سماج میں رہ رہے ہیں. یہاں کے بچوں کو اگر دین کی بنیادی تعلیم نہ معلوم ہو، اس کا علم نہ ہو، تو پھر یہ بڑے افسوس کی بات ہے. تو جماعت اسلامی شاہین باغ اسی بات کی کوشش کرتی آ رہی ہے شروع سے اب تک، کہ ہم بنیادی طور پر جو بنیادی تعلیمات ہیں دین کی، وہ ان کو بچایا جائے. تو ہماری یہ کوشش ہے، اور الحمدللہ اس میں کامیابی مل رہی ہے. لوگ پسند کر رہے ہیں، آ رہے ہیں. آج کا یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ آج یہ جو ہم نے اسلامی کوئز کا پروگرام رکھا تھا، واحد مقصد اس کا یہی تھا کہ یہاں پر ہم بنیادی تعلیم کے لیے لوگوں کو اجاگر کریں. بچوں کو خاص طور سے جو کچا ذہن ہوتا ہے ان کا،
उन बच्चों को अगर अभी से हम इसी बुनियाद को मजबूत कर देंगे, आगे चल के वो अच्छे बच्चे दीन की खिदमत करने के लायक हो सकते हैं। ये खास बात हमने ये देखी, जो पहली 3 पोजीशन है उसमें 2 पोजीशन लड़कियों की है, तो क्या बच्चियां ज्यादा बेहतर मालूमात? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों का ज्यादा शौक है। हमारे मदरसे में बच्चों के साथ बच्चियां भी आती हैं और अच्छे घराने से बच्चियां आ रही हैं और बहुत अच्छी तालीम हासिल कर रही हैं, कामयाबी की मंजिल को भी तय कर रही हैं वो। तो ये बड़ी खुशी की बात है और मैं आइंदा भी उम्मीद रखता हूँ कि ये बच्चियां आगे बढ़ेंगी और हर चीज में देखते हैं कि बच्चियां के अंदर ज्यादा उनके अंदर शौक है कि वो दीन से आगे करीब हो रही हैं, चूंकि बच्चियां जो है वही कल होके वही माँ बनेंगी, घर को चलाने वाली बनेंगी और नस्ल चलाने वाली बनेंगी। अगर वो सुधर गई तो पूरी नस्ल सुधर जाएगी। तो हमारी पहली कोशिश भी यही है कि बच्चों के साथ साथ बच्चियों पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चियां आगे बढ़ रही हैं और अच्छा ये अभी नमूना सामने आया है। उसमें कामयाबी आप देखेंगे, जिन लोगों को सर्टिफिकेट दिए गए, इनामात दिए गए, उसमें जहाँ बच्चों ने अच्छा काम किया है और इनामात पाए हैं, वहाँ बच्चियों की भी अच्छी खासी तादाद है। इस पूरे क्विज में अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों ने अगर परसेंटेज देखा जाए तो लड़कों से बहुत आगे हैं। यानी ठीक है, प्राइज में भी आपने देखा कि 2 लड़कियों ने इनाम हासिल किया, सेकंड और थर्ड, लेकिन एज ए होल देखें तो लड़कियों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। और वो चीज़ देखने में आ रही है समाज में। असल में मुसलमानों में आम तौर पर लफ्जी तालीम का रिवाज है, तो लोग कलमा याद करा देते हैं, सूरह याद करा देते हैं, लेकिन कलमा में क्या माने हैं, किस काम का है, सूरह में क्या बात कही गई है, ये सब बातें लोग नहीं बताते हैं और नहीं समझाते हैं। और असल में इस्लाम तो शऊरी दीन है, सोच समझ करके करने का दीन है। इसलिए हमारा ये करना है कि नई नस्ल के जो बच्चे हैं उनके अंदर ये शऊर पैदा हो कि कलमा क्या है, कलमा का मफहूम क्या है, कहाँ इस्तेमाल होता है। इसी तरह से दीन की दुआएं हैं, अज़कार हैं, दीनी मालूमात हैं, फिर उनका जिंदगी में अमल भी हो। ये बच्चों के अंदर शऊर पैदा करने की जरूरत है, सिर्फ ज़बानी तालीम के पर इंहिसार नहीं होना चाहिए। तो हमारी ये कोशिश है कि ये जो मस्जिद में तालीम देते हैं वो बच्चे जो कॉलेज में स्कूल में पढ़ते हैं और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, उन बच्चों के वहाँ दीनी तालीम का कोई इंतजाम नहीं होता। तो हमारी ये कोशिश ये है कि उन बच्चों की दीनी तालीम का यहाँ मस्जिद में इंतजाम हो और बच्चे अपना अकीदा, अपना दीन, अपनी शरीयत, अपनी तहजीब, अपनी तारीख, ये सब चीजें समझें। इसलिए कि बच्चों को स्कूल में सब नहीं पढ़ाया जाता है। और अब इस वक्त गवर्नमेंट स्कूलों में तो बहुत बुरा हाल है, वहां पर तो उनको नमस्कार सिखाया जाता है, एक खास मजहब का, एक खास तहजीब को बताया जाता है। इसलिए मुस्लिम बच्चे अपनी तहजीब, अपना अखलाक, अपना किरदार, अपना अकीदा, इन सब चीजों से नावाकिफ होते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि बच्चों को इस तरह से दीनी तालीम दे करके उन्हें तैयार किया जाए ताकि पूरी जिंदगी में उस अकीदे के असरात रहें, उस तालीम के असरात रहें और एक मुसलमान और अच्छा इंसान बनकर जिंदगी गुजारें। हमारे साथ इस मस्जिद के इमाम साहब हैं, इनका बहुत अहम रोल है इस कंपटीशन के आयोजन में। जनाब ये बताइए कि क्यों सोचा आप लोगों ने इस तरह का इनेकाद होना चाहिए? असल में इस वक्त जो हम नौजवानों को देखते हैं तो नौजवानों में मुताले की कमी या इसी तरह से जो दीनी मालूमात है उसमें कमी, तो इन तमाम चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए ये बात आई कि जो नौजवानों को जो है तरगीब दिया जाए कि वो इस तरह के कंपटीशन में हिस्सा लें और इसी के बहाने वो किताबों का मुताला करें। और ख़ास तौर पर जो बहुत बुनियादी चीज़ें हैं जैसे रोज़ा है, नमाज है, जो इस्लाम की बुनियाद में से हैं, उन चीज़ों के बारे में हमारे नौजवान जो है जाने। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी सिलसिले की ये कड़ी थी जिसमें हमने ये कोशिश की और यही बातें हमारे जहन में थी कि इस तरह से बच्चों को मुताला भी कराया जाए, उसकी रग़बत भी दिलाई जाए और इस तरह से बच्चे क्या नाम है इनामात के उसमें बच्चे आकर के मुताला भी करेंगे। इंशाल्लाह इस तरह की चीजें आइंदा भी होती रहेंगी। ये इंशाल्लाह जिस तरह का माहौल देखा गया है और जिस तरह की रग़बत बच्चों ने और नौजवानों ने और सरपरस्तों ने दिखाई है, तो इंशाल्लाह इससे हौसला भी मिला है और आइंदा इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इस तरह के और प्रोग्राम इंशाल्लाह चलाएं और कामयाबी के साथ चलाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम ज़ैनब खातून है। जी, तो आपने इस क्विज इस्लामिक क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या कोई खास तैयारी की या अचानक? नहीं, कोई खास तैयारी नहीं की क्योंकि ये रमजान में ही होने वाला था, बट पोस्टपोन हो गया ईद की वजह से, तो मैंने उसी टाइम पढ़ा था।
तो बस, और जिस दिन मेरा एंट्रेंस था उसके बाद ही मैं ये क्विज देने आई थी, तो यही था तैयारी, बस बुक्स जो उन्होंने बताई थी वही पढ़ी। आमतौर पे कुछ कंपटीशन बहुत सारे होते हैं, इस्लामी कुछ कंपटीशन बहुत कम होते हैं, तो कैसा लगता है आपको इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए? जी बिल्कुल होते रहने चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ इनाम एक मतलब ये मकसद नहीं कि हमें इनाम मिला, मकसद ये था कि हमने जो पढ़ा उस पर हम कितना अमल करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि जो जीते उनके ऊपर और ज्यादा प्रेशर बन चुका है कि हम जीते तो हमें और ज्यादा इस पे अमल करना है, क्योंकि हमने जो सीखा है कि क्योंकि हम इस चीज में आगे बढ़े हैं उन लोग से, तो हमें और ज्यादा इसमें और अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको पहले से यकीन था कि आपको तीसरी पोजीशन आ सकती है? नहीं, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है अभी तो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की वजह से कि मैं 3rd पोजीशन पे आई हूँ, बट अभी शायद ये सब हो चुका है तो अब थोड़ा बहुत यकीन हो रहा है, और घर जाके बताएंगे तो और सब खुश होंगे। कहाँ रहती है आप? ओखले में कहाँ रहती हैं? मैं शाहीन बाग में ही रहती हूँ। मेरा नाम अरीबा है। अरीबा, आप क्या पढ़ाई करती हैं? मैं अभी फिलहाल जामिया में बीए कर रही हूँ, मेरी ग्रेजुएशन चल रही है। आज की कुछ कंपटीशन में कौन सी पोजीशन मिली आपको? जी आज मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर इम्तिहान, कोई पोजीशन कौन सी मिली आपको? दूसरी पोजीशन आज आई? मेरी 2nd पोजीशन तो आई। क्या आपको यहाँ पार्टिसिपेशन से पहले यकीन था कि मैं जितनी तैयारी की हूँ दूसरी आ सकती है? नहीं, असल में कुछ इतनी खास तैयारी नहीं हो पाई थी, पर बहुत तैयारी हो गई थी, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं थी, क्योंकि लास्ट टाइम पर हमें पता चला था 1 दिन पहले कि एग्जाम है, तो इसीलिए। उन बच्चों को क्या बोलेंगे आप जिनको बाकी दूसरी चीजें सब पता रहता है, फिल्मों के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में, इस्लाम के बारे में बहुत कम मालूमात होती है? मुसलमान है तो मजहब के बारे में भी जानना चाहिए, तो आप उन बच्चों को क्या कहेंगी जिन्हें सारी चीजें तो पता है, इस्लाम के बारे में ही पता नहीं है? जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि ये दौर जो है बहुत फितने का दौर है, दज्जाली दौर है, तो इस ज़माने में बहुत ज़रूरत है कि वालिदैन भी अपनी औलाद की इस्लामी तरबियत पर तवज्जो दें, और औलाद भी अपनी पढ़ाई को मुकम्मल तरीके से पूरा करे और अपने हुकूक पहचाने, इस्लाम में उन्हें क्या करने का हुक्म दिया है, क्या करने से रोका है, उन सारी चीज़ों पर अमल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल अजीज, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद याकूब है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं शाहीन बाग में रहता हूँ। आज आपने टॉप किया है, एक तो सर्टिफिकेट्स मिले हैं, हमारे व्यूअर को बताइए क्या आपको कैश प्राइज भी मिला है? जी कैश प्राइज में मिला है, बल्कि लिफाफे में बंद करके। 7,000 रुपए मिले हैं? हाँ 7,000 रुपए। तो आपको यकीन था कि पहली पोजीशन आपको ही मिलेगी आज? जी, कह सकते हैं कि 90% यकीन था पहली अच्छा। पोजीशन। तैयारी इतनी बेहतरीन कर ली थी आपने या क्वेश्चन मालूम चल गया था? नहीं, तैयारी मतलब एक बार किताब पढ़ा था, काफी था। तो कोई एक ही किताब से फिक्स था कि उसी से आएगा या ओवरऑल ये था नहीं, क्वेश्चन? सर से, शेख से पूछा था, शेख साहब से, तो उन्होंने कहा था नहीं किताब से ही सवाल आएंगे, तो बस किताब एक बार पढ़ लिया, बाकी सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह पहले से भी पता थी बस। आप उन बच्चों से क्या कहेंगे जिनकी दूसरी मालूमात रहती है? हम लोग जानते हैं बच्चों को बहुत मालूमात रहती है, इस्लाम के ताल्लुक से मालूमात बहुत कम रहती है, ऐसे बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? तो बस उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप हर फन मौला बनिए, है ना, आप सब चीज में नॉलेज लीजिए, स्पेशली इस्लाम, क्योंकि आप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए जिंदगी में इस्लाम है ना, इस्लाम, उसके ऊपर आपको फॉलो करना है, आपकी जिंदगी है, आपसे मरने के बाद आपसे पैसा यहीं रह जाएगा, सब चीज इधर ही रह जाएगा, है ना, सिर्फ कब्र में आपसे आपके अमाल के बारे में सवाल होगा, और आपने कैसे सलात अदा किए हैं, ज़कात कैसे दिए हैं, है ना, आप ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब जानते हैं, आपका अकीदा दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त है ना, तो ये सारे सवालात होते हैं। कितनी खुशी लग रही है, पहली पोजीशन हासिल हुई है। पहले आपने कभी इस तरह के कंपटीशन में हिस्सा लिया था या पहला ऐसा जिसमें आपको पहली पोजीशन हासिल हो गई? नहीं, कंपटीशन में तो कई सारे कंपटीशन में हिस्सा लिया हूँ। आप शाहीन मस्जिद में पहला कंपटीशन था जिसमें मैं हिस्सा लिया था। कितनी खुशी मिल रही है, पहली पोजीशन हासिल हो गई आपको? जी खुशी अल्हम्दुलिल्लाह काफी है। दोस्तों, इस तरह के इनेकाद की बहुत ज़रूरत है। मैंने पहले भी कहा आपको, बेशक आपके बच्चों को सारी मालूमात होनी चाहिए। एक तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है कि वो मालूमात में बहुत तेज़ हो, जनरल नॉलेज में बहुत तेज़ हो। तो ठीक है, बेहतर है आपको सारी मालूमात है, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते आपकी ये भी जिम्मेदारी है कि आपको इस्लाम के ताल्लुक से भी जानकारी होनी चाहिए। तो आप भी इस बार अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, कर सके हैं किसी वजह से, तो आइंदा जब इस तरह का इनेकाद जहाँ भी हो तो कोशिश कीजिए उसमें पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे हैं आप तो इस्लामी किताबें पढ़िए, ताकि आपको भी दुनिया की दूसरी मालूमात की तरह इस्लामी मालूमात भी रहे।